Good evening, everyone. Let us start today's session. Sit back comfortably, take a few deep breaths, and relax. Let me look at myself. I am a soul, the power that thinks all the day. From today, I'll have the awareness that my every thought is the energy that I create and radiate to the world. Let me look at myself, check what kind of thoughts I create for others through the day. They may be doing anything, but what are my thoughts for them? From today, I have the awareness that what I think of others is the foundation of my relationship with them. What I add to this foundation is my choice. Today, throughout the day, I will lovingly check my thoughts for everyone, then gradually change those. The foundation of my relationships is my choice and creation. From today, every thought that I add to this foundation will be clean, pure, and loving. And Shanti. A very happy Shivratri to all of you. I hope the screen is audible. The screen is visible and I'm audible. So yesterday we were doing a chapter in which two questions were left. I am giving an overview of the chapter we did yesterday. It was connecting truly in relationships. From this chapter, we learned that to connect truly in relationships, we have to be, we have to give unconditionally. We have to become selfless, no selfish motives, and we have to see the true nature of everyone, including ourselves. From that chapter, we got a very beautiful learning that we have to learn to let go. Why we have to learn to let go? Because sometimes we are under the influence of some of the sanskars which are acquired throughout many worlds. That's why we get surprised many times with our own reaction. So this happens with everyone. We don't even know many of our acquired natures, which get played instantly with some trigger or stimulus. So when we get this understanding, we create compassion. That compassion we have to create for ourselves and for others too. So we have to learn to let go of the past behavior and remember the seven original qualities, or what we call the original songs, which are recorded or which are recorded eternally in our CD. The CD symbolizes our souls.
So what are these 7 original qualities? These are purity, power, peace, happiness, love, blessings, and wisdom. We have to see everyone, each one we meet, in the light of these 7 original qualities. If their present behavior is opposite, for example, if we say that someone is angry, then also we have to create that he or she is a peaceful being, because when we create such thoughts, they will reach them, and then only the original qualities will start to emerge. Panic or be impatient during the process, but do your karma. In that way, your own thoughts will also be pure and beautiful. Your thought is one of the karma you are doing. Our karma constitutes of thoughts, words, deeds. So we have to keep our thoughts clean and pure. That was our takeaway from yesterday's chapter. We have two questions left from this chapter. Let us complete that quickly and start the next one. I have to be playing one of those 7 original songs myself to be able to see others in that light. If I am on another track, it is not going to work. Yesterday we were discussing that the 7 original songs or the 7 original qualities are in all the songs. But to see that, we have to be playing those songs in our own CD or our soul. Then only we will be able to identify those qualities in others too. So the Shivanya is saying, absolutely, unless we ourselves are using those 7 qualities, we will not be aware that others have them too. When we look at another soul with the consciousness that it has those original qualities, there is high probability that our vibrations will activate those in it. तो जब हम उन ओरिजिनल क्वालिटीज से पूरे फिल्ड अप होते हैं, तब हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है, सामने वाले तक पहुंचती है, और फिर उनके अंदर वो जो क्वालिटीज है वो एक्टिवेट होती है. दिस इज वाई सोल कॉन्शियसनेस इज सो इम्पोर्टेंट. इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट है. जो राज योगा, ये जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो सिखाते हैं ना राज योगा, ये एक एंशियंट विजडम है, पर ये बहुत रेलेवेंट है. अभी जो टाइम चल रहा है उसमें भी बहुत रेलेवेंट है हमेशा से ही. और ये ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है. जिनके हम बुक पढ़ रहे हैं सिस्टर शिवानी, वो भी बीके ही हैं. मतलब ब्रह्मा कुमारी से ही है वो जुड़े हुए. और ये जितनी भी टीचिंग्स हमें मिलती हैं, ये सारे उनकी एंशियंट विजडम ही है, जो कि सिस्टर शिवानी बहुत ब्यूटीफुली इजीली हमें अच्छे से समझा देती है. तो राजयोग हमें यही एफर्ट, ये इनर एफर्ट करना सिखाता है. जब हम अपने अंदर में ये चेंजेस लेकर आते हैं और फिर हम क्रिएट करते हैं कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम दूसरों को भी प्योर पीसफुल लविंग souls की तरह देख सकते हैं. If someone is shouting at us, but we create a thought he is originally a peaceful being, then firstly we will be able to play our original song or sanskar instead of reacting at him. Secondly, the vibrations of peace and love that he receives from us will silence his anger and activate his sanskar of peace. अगर कोई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, शाउट भी कर रहा है, तभी भी अगर हम ओरिजिनली ये पीसफुल बीइंग है ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे उनके लिए, तो पहले क्या होगा कि हमारी जो ओरिजिनल सॉन्ग है, ओरिजिनल संस्कार है, पहले हम अपने खुद स्टेबलाइज होंगे. हमारा ओरिजिनल संस्कार के थ्रू हम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. और दूसरा क्या होगा, जो हमारी ये वाइब्रेशन होगी ना पीस और लव की,
ये उनको मिलेंगे, उनको जाके रीच करेंगे और उनके एंगर को साइलेंट करेंगे और उनके संस्कार ऑफ पीस को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि हमने क्या देखा कि पीस क्या है, सोल का ओरिजिनल संस्कार है। तो ये ओरिजिनल क्वालिटीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उस बेबी में, बस अब जरूरत क्या है उसको प्ले कराने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए वो वाइब्रेशन हमें उस सामने वाले सोल को भेजने होगी। We will do this homework to see everyone in the right of our seven original qualities. तो ये होमवर्क हम करेंगे कि सब लोगों को सेवन ओरिजिनल क्वालिटीज में भी देखेंगे. Let us at least do this much. Whoever we meet during the day, the first thought we create for it is, this is a pure, beautiful, loving, पीसफुल एंड पावरफुल सोल. तो सिस्टर शिवानी ने क्या कहा, अभी इतना ही करते हैं कि किसी से भी मिलेंगे तो उसके लिए पहली थॉट क्या क्रिएट करेंगे कि ये प्योर, ब्यूटीफुल, लविंग, पीसफुल एंड पावरफुल सोल. If someone is very weak and he is unable to do what he decides to, then instead of looking at his weakness, let us send across a pure thought. He is a powerful soul. अगर कोई वीक है, कोई कुछ करना चाहता है, डिसीजन लिया पर उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वीकनेस को नहीं देखेंगे, उसके लिए प्योर थॉट क्रिएट करेंगे. he is powerful soul. Basically, we are sending him the vibration that can trigger the beautiful song recorded in him, of which he has lost awareness. अगर हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे तो उनके अंदर में जो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग रिकॉर्डेड है, जिसके बारे में उनको खुद को भी नहीं पता है, वो फिर हम वाइब्रेशंस के थ्रू एक्टिवेट करेंगे. देयर इज अ हाई चांस दैट आवर प्योर वाइब्रेशंस विल बी एबल टू एक्टिवेट दिस ओरिजिनल संस्कार. नेक्स्ट चैप्टर, फीड द रूट यू वांट टू सी ग्रो. I used to constantly complain to my guru about others. He would respond by saying, a crow caws, a cat meows. But I did not know that it was his answer for me. Now I understand that every leaf is different. Now the crow is cawing, another birds are chirping, but that is not disturbing me. It is so clear to me now that every soul is different and has its own point of view, and there is nothing wrong with that. सुरेश जी कह रहे हैं कि वो अपने गुरु से कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते थे दूसरों के बारे में, और उनके गुरु का रिस्पॉन्स क्या होता था कि एक क्रो कॉ करता है, कैट म्याऊ करती है. पर उस वक्त सुरेश जी को ये समझ नहीं आया था कि वो उनका आंसर है, उनके गुरु का आंसर है. अब उनको समझ आ रहा है कि हर एक लीफ डिफरेंट है, जैसे हमने पढ़ा ना कि हर एक लीफ डिफरेंट है. टू लीव्स आर नेवर आइडेंटिकल, लेकिन वो अलग काइंड के डिफरेंट है, पर ये गलत नहीं है, ये चीजें हमने समझी. नाउ द क्रो इज फ्लाइंग एंड अदर बर्ड्स आर चirping. तो अभी क्रो फॉक कर रहा है, अदर बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, लेकिन वो सुरेश जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. अब ये उनको इतना क्लियर हो चुका है कि हर एक सोल डिफरेंट होती है, हर एक सोल का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है. Sister Shivani career just shared something important. When a crow caws or a bird chirps, it no longer disturbs you. Why not? Sister Shivani कह रही है कि आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. अब ऐसा क्यों? Because I know they will surely do it. It is their nature. सुरेश जी कह रही है कि अभी क्योंकि पता चल चुका है कि वो लोग तो ये करेंगे, कभी इनकी नेचर है. तो सिस्टर शिवानी कह रही दिस इज एक्सेप्टेंस, इट मेक्स आवर माइंड स्टेबल. तो सिस्टर शिवानी कह रही यही एक्सेप्टेंस है, इसकी वजह से हमारा जो माइंड होता है वो स्टेबल हो जाता है. Acceptance is considered more of a weakness than a virtue. A person who accepts others often looks at himself as a victim who is forced to do so. सुरेश जी कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस को एक वीकनेस की तरह कंसिडर किया जाता है, एक वर्च्यू की तरह, एक गुण की तरह नहीं देखा जाता है. जो कोई किसी और को एक्सेप्ट करता है वो खुद को ही ऐसे देखता है कि वो एक विक्टिम है जिसे फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ रहा है. If someone thinks in this manner, it means he has not used the virtue of acceptance at all. When you say you do not get disturbed by the words, all it means is that you do not create any thoughts questioning their act or nature. You accept that they are words with their own voice, and that's what comes naturally to them.
अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस वर्च्यू नहीं है, उसे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, मतलब उसने एक्सेप्टेंस का मतलब ही नहीं समझा है। अगर आप कहते हैं कि आपको बर्ड्स अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी थॉट्स क्रिएट नहीं करते हैं क्वेश्चनिंग देयर नेचर और एक्ट, मतलब वो कुछ भी करे तो उसको क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि ये भी क्यों चेक कर रहे हैं, तो इस टाइप के आप कोई भी थॉट्स नहीं क्रिएट करते कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो जो भी एक्ट है उनका नेचर है, उसके लिए जब हम कोई भी थॉट्स क्रिएट नहीं करते हैं, उसका मतलब है कि हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। You accept that they are birds with their own voice and that's what comes naturally to them. इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो बर्ड्स हैं अपनी ओन वॉइस के साथ में, और यही वो नेचुरली कर सकते हैं। गॉड टीचर्स अस अ ब्यूटीफुल थिंग। भगवान हमें क्या सिखाते हैं? जो आत्मा प्रश्नचित्त होती है वो प्रश्नचित्त नहीं बन वो प्रसन्नचित्त नहीं बन सकती। जो आत्मा प्रश्नचित्त होती है, मतलब जो क्वेश्चन करते रहता है दूसरों के संस्कार को देख करके, इसका मतलब हुआ कि जो भी सोल होगी और दूसरों के नेचर को देख करके प्रश्न ही उठाती रहेगी, क्वेश्चंस उठाती रहेगी कि ऐसा क्यों, तो वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं बन सकती, मतलब वो कभी हैप्पी नहीं हो सकती है। यानी क्वेश्चंस अगर करते रहेंगे हम दूसरों के नेचर को देख करके, तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस लव, ब्लिस एंड हैप्पीनेस, वी हैव टू बी फ्री ऑफ जजमेंटल थॉट्स। अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, तो हमें फ्री होना पड़ेगा जजमेंटल थॉट से, मतलब हमें दूसरों के एक्ट को जज नहीं करना है, जजमेंट से एकदम अलग हो जाना है। And that will happen when we accept people and situations as they are. ये कब होगा? हम कब नॉन जजमेंटल बनेंगे? जब हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस से हम नॉन जजमेंटल बनेंगे, और जब हम नॉन जजमेंटल बनेंगे तब हमें एक्सपीरियंस होगा लव प्लस और हैप्पीनेस। The moment we have questions about them, our happiness disappears. जब हम क्वेश्चंस उठाते हैं तो हमारी हैप्पीनेस गायब हो जाती है, मतलब जब हम प्रश्नचित्त बनते हैं तो तब हमारा प्रसन्नचित्त वाला नेचर जो है वो उस टाइम के लिए गायब हो जाता है। Others will be what they are. Our focus should be on keeping our mind silent. दूसरे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारे खुद के माइंड को हमें साइलेंट करना है। Today, if we check, our mind is always questioning everything, and so we hardly get to experience peace. अगर हम चेक करेंगे, हमारा माइंड हमेशा आजकल क्वेश्चन करते रहता है हर एक चीज को, इसीलिए हम पीस को बहुत कम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। नाउ वी हैव टू चेंज फ्रॉम बीइंग प्रश्नचित्त जजमेंटल माइंड टू प्रसन्नचित्त ब्लिसफुल माइंड, एंड एक्सेप्टेंस इज द की टू इट। तो अभी हमें चेंज करना है, प्रश्नचित्त से प्रसन्नचित्त बनना है। प्रश्नचित्त यानी दूसरों के व्यवहार को देख करके, दूसरे और सिचुएशंस को देख करके ऐसे थॉट्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं अराइज करने हैं अपने मन में कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जजमेंटल माइंड से शिफ्ट होकर के हमें ब्लिसफुल माइंड, प्रसन्नचित्त बनना है। और ये हम कैसे कर पाएंगे? प्रश्नचित्त टू प्रसन्नचित्त वाली जर्नी हमें एक्सेप्टेंस के थ्रू मिलेगी। जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तब हम जजमेंटल नहीं होते, नॉन जजमेंटल बनते हैं। और जब हम नॉन जजमेंटल बनेंगे तब हम अपनी ओरिजिनल जो लव, ब्लिस एंड हैप्पीनेस वाले संस्कार है उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। What does acceptance truly mean? Should we not interfere in others' business even when they act against their own well-being? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दूसरों के मामलों में जब वो अपने खुद के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस सिंपली मीन्स टू बी फर्स्ट एट पीस विद आवरसेल्व्स। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम खुद अपने अंदर में पीसफुल हो। इफ फॉर एग्जाम्पल आई थिंक योर चेयर नीड्स टू शिफ्ट, देन आर टू स्टेप्स टू गो अबाउट इट। First, I accept that it is yours inspired to sit like this and that you are comfortable in this position.
It means I do not create these thoughts. Why is he sitting like this? He doesn't even know how to sit. He should have at least moved a bit. Can't he understand the thing I correct him every day? He has become very stubborn. As these thoughts lead us to reject the situation or person, we should not create them. उसने एग्जाम्पल दी है कि अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपकी चेयर को थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो इसके लिए दो स्टेप है। पहला कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। आपको एक्सेप्ट कर लें जैसे कि आप बैठे हैं, जो आपके चेयर है, आप जैसे बैठे हैं आपको एक्सेप्ट पहले कर लिया जाएगा कि ठीक है, ये इनका संस्कार है, ये इनकी नेचर है, इनको ऐसे ही करके बैठना आता है और ये कंफर्टेबल है इस तरह बैठने में। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरा क्या होगा, हम थॉट्स क्रिएट करेंगे। ये ऐसे क्यों बैठ रहा है, इसको बैठना भी नहीं आता, थोड़ा सा तो मूव कर सकता है, हर दिन इसको समझाना पड़ता है। ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस टाइप के थॉट्स क्रिएट करते हैं किसी के लिए, मतलब हम उस सिचुएशन को, उस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब हम उनको रिजेक्ट करते हैं तब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। When we are peaceful and stable, we must take the second step and convey what we want to. जब हम पीसफुल एंड स्टेबल इनसाइड है, मतलब हमने उनके लिए कुछ भी ऑपोजिट थॉट्स नहीं क्रिएट करी अपने मन में, तब फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम उनको कन्वे करें, उनको अच्छे से बताएं हम क्या चाहते हैं। We may have to repeat the same thing to our family and friends every day if it is for their betterment. हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को हर दिन बहुत सारी चीजें समझाने को पड़ सकती है, सेम चीज, और उनके बेटरमेंट के लिए। वी कुड से आई फील इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डू इट लाइक दिस। हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना, उनको इस तरह से समझा सकते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि आपके खुद के लिए बेटर होगा अगर आप इस तरह से करें। Once we convey this, we should put a full stop to our thoughts. एक बार जैसे ही हमने कन्वे कर दिया, उनको बता दिया, उसके बाद अपने थॉट्स पे एक फुल स्टॉप लगाना है। We should not expect the other person to accept it right away. That's because he will accept it only when he is comfortable with it. जब हमने उनको कन्वे कर दिया ना ये बात कि आपको इस तरह से करना चाहिए, आपके लिए बेटर होगा, उसके बाद अपने थॉट्स पे फुल स्टॉप लगा दे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि वो तुरंत आपकी बात मान ले, क्योंकि वो कब उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे जब वो खुद उस चीज के साथ कंफर्टेबल होंगे। We should be very clear about our role as a parent, friend, or senior in the organization. Our role is only to empower others through our vibrations so they can grow. Parents must give emotional support, right advice to their children. After that, they have to let them be. हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने रोल को लेकर, चाहे पेरेंट हो, फ्रेंड हो, सीनियर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा रोल क्या है कि हमें दूसरों को एम्पावर करना है अपनी वाइब्रेशन से कि वो ग्रो कर पाए। और वाइब्रेशन से हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, अपनी थॉट से। जो भी थॉट्स हम उनके लिए क्रिएट करते हैं उस चीज से वही हमारी वाइब्रेशन बनती है। तो वो जो हमारी थॉट्स उस सामने वाले को रीच करती है, अगर हमारी थॉट्स प्योर होगी, पावरफुल होगी, तो वो क्या करेगी, सामने वाले सोल को, सामने वाले पर्सन को एम्पावर करेगी। वो जब एम्पावर होंगे तब वो ग्रो कर पाएंगे। पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना होता है, पोलाइट एडवाइस देनी होती है अपने चिल्ड्रन को। उसके बाद में वो एक्सेप्ट कब करते हैं, जब वो उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए अपने थॉट्स पे फिर फुल स्टॉप लगाना होता है। इट इज जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ प्लांट। फर्स्ट वी चेक द क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। जैसे हम अगर कोई प्लांट का ध्यान रखते हैं तो पहले हम क्या चेक करते हैं कि उस सीड की क्वालिटी कैसी है, और फिर सनलाइट किस डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद हम उस सीड को सो करते हैं, उसको हर दिन पानी देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम पेशेंटली वेट करते हैं नेचर के लिए कि वो अपने ओन कोर्स में उसको हेल्प करे ग्रो करने में। Sometimes if the sapling does not appear in a few days, we dig up the seed. It will not grow like that.
कभी अगर सैपलिंग कुछ दिनों में भी नहीं आता है तो फिर हम सीड को बाहर निकालते हैं, इस तरह से वो नहीं ग्रो करेगा। आफ्टर गिविंग एडवाइस वी हैव टू जस्ट लीव इट देयर। इसमें जैसे हमने एडवाइस दी ना, इसको सोच लेते हैं हम कि ये सीड है, हम इसको सो कर रहे हैं, उसके बाद हमें उसको छोड़ना होगा। फिर क्या करना होगा? पेशेंटली वेट करना होगा। लेकिन जैसे हम पानी देते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने प्योर वाइब्रेशंस देनी है सामने वाले को। प्योर वाइब्रेशंस जब हम देते रहेंगे तो उसको स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। बट वी शुड नॉट कीप चेकिंग एवरी डे इफ ही हैज चेंज्ड और नॉट। पर इस टाइम पे हम चेक नहीं करते रहेंगे हर दिन कि इन्होंने चेंज किया अपने आप को, अपने संस्कार को, अपनी नेचर को, हैबिट को चेंज किया या नहीं। ऐसे बार बार चेक नहीं करेंगे। लेट अस नॉट गेट वर्कड अप ओवर डेली इन रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, or else we will begin to complain about him to others। अगर हम ऐसे बार बार चेक करते रहेंगे ना इन्होंने अपनी हैबिट बदली या नहीं बदली, जैसे अगर हमने कोई एडवाइस दी कि आपकी ये हैबिट अच्छी नहीं है, आपके लिए खुद के लिए बेटर होगा अगर आप इस चीज को इस तरह से करें, ऐसे एडवाइस दी, उसके बाद उस एडवाइस को छोड़ देना है। फिर उनको डेली प्योर वाइब्रेशंस देनी है ताकि वो एम्पावर हो। और उसके बाद में जब वो एम्पावर होंगे ना तो वो अपनी हैबिट को, अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज कर लेंगे। पर हमें हर दिन चेक नहीं करते रहना है, क्योंकि अगर हम हर दिन चेक करेंगे इन्होंने अपनी हैबिट चेंज करी या नहीं, अगर वो नहीं चेंज करते तो हम क्या करेंगे? फिर हम उनके बारे में ही कंप्लेन करने लग जाएंगे। इसलिए उस चीज को वैसे का वैसे एडवाइस को छोड़ना होता है, लेट को करना होता है। We may then say he will never change. If we keep sending such vibrations to him, he will not be able to make any progress at all. Very true। तो सुरेश ये कह रहे हैं कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम डेली डेली चेक करते रहेंगे ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर हम इस टाइप के थॉट्स इनको क्रिएट करेंगे, उनके लिए वाइब्रेशंस ऐसे सेंड करेंगे, तो फिर तो वो कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। If there is no change in the other person, it could also mean that something is lacking in our prayers and vibrations। अगर हमें सामने वाले में कोई चेंज नहीं दिखता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रेयर, हमारी वाइब्रेशन में ही कोई कमी थी? सुरेश ऐसा पूछ रहा है। Usually when things do not cooperate, we change our vibrations immediately। When we tell someone you will be able to do it, it is a powerful blessing। हम क्या करते हैं यूजुअली, जब हम देखते हैं कि जो चीजें हैं वो हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशंस को ही चेंज कर लेते हैं। जब हम किसी को ऐसे कहते हैं ना कि तुम ऐसे कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू इट, तो ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग है। बट इफ वी लेट इट बी थॉट्स ऑफ डाउट सच एज आई डोंट रियली नो इफ ही विल बी एबल टू डू इट, he has never succeeded so far, then our best wishes will not work even though our words are positive। मतलब अगर हमने वर्ड्स में ऐसे कह दिया सामने वाले को कि तुम ऐसे कर पाओगे, लेकिन मन ही मन हम थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? डाउट की, कि ये नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, इन्होंने कभी सक्सीड तो किया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड्स तो हमने पॉजिटिव बोले, पर थॉट्स में हमने क्या किया? थॉट्स हमारी पूरी बेस्ट की। Our role in every relationship is to empower the other person and to accept him instead of questioning him। हर एक रिलेशनशिप में हमारा रोल क्या होता है कि हम सामने वाले को एम्पावर करें और उनको एक्सेप्ट करें। क्वेश्चन करने की जगह हमें क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। प्रश्न चित्त बनने की जगह प्रसन्न चित्त बनना। If the family collectively sends positive vibrations to one of their members, that soul can create miracles as the positive sanskars recorded on it will emerge। Remember, every soul has pre-recorded original sanskars of purity and power। अगर पूरी फैमिली मिलकर के पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करती है फैमिली मेंबर्स को, तो वो सोल मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। उसके पॉजिटिव संस्कार जो हैं वो फिर इमर्ज होने लग जाते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव जो ओरिजिनल हमारे संस्कार है उनके बारे में बातें करी ना, जो सब सोल्स के पास में है, प्योरिटी, पावर, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लेसिंग्स एंड विजडम, ये हम सबके पास है। बस क्या हुआ है कि कुछ वर्ड्स हमारे लेते लेते संस्कार कुछ खराब वाले भी बन गए हैं, लेकिन वो सारे एक्वायर्ड संस्कार है, वो हटाए जा सकते हैं। तो हमारे ओरिजिनल संस्कार को ट्रिगर क्या करती है? जो प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस विशेस होती है वो ट्रिगर करती है। तो अगर कोई पूरी फैमिली मिलकर एक जन को
अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करती है तो वो सोल मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है. सपोज अ चाइल्ड हैज अ हैबिट ऑफ lying. Parents ask us if acceptance means that they let their child be the way he is. No, acceptance means that for the present moment the parents accept the child with that sanskar and they do not create a single question in their mind such as why does he lie? When their mind is silent, they will play a huge role. It will play a huge role in the child's transformation because they will be able to send good vibrations to him. Their focus will change to awakening the child's positive sanskars. अगर किसी चाइल्ड को झूठ बोलने की आदत हो तो पेरेंट्स पूछते हैं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, उसको वैसे ही रहने दें. तो एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप उसको वैसे ही रहने दें. बस प्रेजेंट मोमेंट में क्या है कि चाइल्ड को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये इसके अंदर ऐसे संस्कार है, पर उसके लिए जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे कि ऐसा ये क्यों है, ये झूठ क्यों बोलते हैं. क्योंकि जब हमारा माइंड साइलेंट होगा तभी वो उसको पॉजिटिव संस्कार सेंड कर पाएंगे अपने चाइल्ड को और वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत हेल्पफुल होगा. In our family, we usually look at others through their prominent sanskars and everyone discusses those constantly. If a family member already has a dominant negative sanskar and everyone keeps talking about it, then we end up giving more energy to that sanskar. Where attention goes, energy flows. And where energy flows, things grow. इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए. क्या है कि हम जो भी संस्कार के बारे में अटेंशन रखेंगे, जैसे वो झूठ बोलने वाला ही है, वो नेगेटिव संस्कार है. अगर हम नेगेटिव संस्कार के बारे में सब लोग मिलकर डिस्कस करते रहेंगे तो वो सोल के अंदर जो नेगेटिव संस्कार ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ट्रिगर करते रहेगा, फिर उसका संस्कार और पक्का होता जाएगा. अगर कोई पॉजिटिव संस्कार है किसी के अंदर, आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका पॉजिटिव संस्कार पक्का होता रहेगा. तो इसमें क्या सिखाया गया कि जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है, मतलब जैसे हमने डिस्कस जिसके बारे में किया, जिसके बारे में सोच रहे हैं तो वो करते हैं. अगर अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं तो वो अच्छी चीजें ग्रो करते हैं. कैसे? फिर अटेंशन ग्रोज एनर्जी फ्लोज. हम जहाँ पे अटेंशन रखेंगे वहां पे हमारी एनर्जी फ्लो करेगी. अच्छी चीजों पे अटेंशन रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, बुरी चीजों में अटेंशन रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी होगी. सो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स फ्लो. और जैसे हमारी एनर्जी वहां पे फ्लो होगी तो वही चीजें ग्रो करेंगी. I read a beautiful story. A son tells his father that he has noticed two wolves inside him who are in a tug of war with each other. One wolf pulls him towards goodness and the other pulls him towards evil. Who will win? He asks. The father answers, the one you feed more will win. सुरेश जी कह रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसमें एक सन है जो अपने फादर को बोल रहा है कि मेरे अंदर दो वुल्व्स हैं जो कि एक टग ऑफ वॉर कर रहे हैं. और एक एक बोलता है अगर वो जीत जाएगा ना तो वो मुझे अच्छा बनाएगा, मुझे अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा, और दूसरा अगर जीत जाएगा तो मुझे बुराई की तरफ जीत जाएगा. तो कौन जीतेगा? तो उसके फादर ने उससे कहा कि जिसको तुम ज्यादा फीड करोगे वही जीतेगा. सो ब्यूटीफुल. इसी के तो हमारे आज वाले चैप्टर का टाइटल है फीड द wolf you want to something something. So beautiful. Most importantly, the wolf that is fed by the entire family will win. Suppose you are feeding the wolf of anger inside you, or the rest of your family is feeding your good wolf, then the latter will become stronger. This is what we have family, friends, and relationships for. तो ये जो वुल्फ है ना, ये पूरी इंटायर फैमिली जिसको फीड करेगी वो जीतेगा. अगर आप अपने अंदर के एंगर वाले वुल्फ को फीड करें लेकिन आपकी फैमिली आपके अंदर के गुड वुल्फ को फीड कर रही है तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? किसको ज्यादा अटेंशन मिली? गुड वुल्फ को मिली ना. तो गुड वुल्फ फिर जीतेगा. इसीलिए यही हमारा रोल होता है एज फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप जिसके भी साथ में हम हों. हमारा यही रोल होता है कि हम अच्छी चीजों पे अपना अटेंशन रखें, उनको अच्छाई की तरफ लेकर जाएं. एवरी पर्सन हैज शॉर्टकमिंग्स एंड दे कैन बिकम वर्स इफ दे repeatedly act according to those flaws. So it is our role of the family members to feed the good wolf in each other, but unknowingly they too keep feeding the bad wolf. That's why it keeps getting stronger day by day. Always remember, where attention goes, energy flows, and where energy flows, things flow.
Instead of paying attention to those negative sanskars, we have to focus on their positive sanskars that may not even be active at the time. For example, when we look at someone who is short tempered, we can think even though he gets angry these days, he was not like this always. He is originally a peaceful soul, even though his dominant sanskar is that of anger. He uses the quality of peace many times during the day. He does not stay angry all through the day. It is just that he is using the sanskar of peace less, that of anger more. हमें क्या हमेशा ध्यान रखना है अगर किसी के अंदर कोई नेगेटिव संस्कार भी है तभी भी हम नेगेटिविटी के ऊपर नहीं ध्यान दें क्योंकि कोट हमने पढ़ा ना वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। तो अभी जो डोमिनेंट संस्कार हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में ज्यादा अटेंशन नहीं रखते उस ओरिजिनल क्वालिटी की तरफ हम ज्यादा अटेंशन रखेंगे कि ये अभी भले ही डोमिनेंट संस्कार इनके अंदर एंगर का है पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनके अंदर बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज है। अभी भले ये पीस को लेस यूज कर रहे हैं एंगर को मोर यूज कर रहे हैं पर ये ओरिजिनली बहुत पीसफुल लवफुल ब्यूटीफुल बीइंग है जो कि आज हमने होमवर्क भी दिया है कि जिससे भी हम मिलेंगे हम पहले थॉट उनके बारे में ऐसा ही क्रिएट करेंगे। That's a very good point. At times, we think that despite all our efforts, we are unable to bring out someone's good qualities. The reality is that when that person displays a positive sanskar, we do not pay much attention to it, as we are expecting a total makeover. सुरेश जी कह रही है बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी बहुत एफर्ट्स लगाते हैं फिर भी हम उनकी गुड क्वालिटीज को नोटिस नहीं कर पाते। रियलिटी क्या होती है वो पर्सन अपनी अच्छी क्वालिटीज को अच्छे संस्कार को दिखाता तो है यूज भी करता है पर हम उस अच्छाई की तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं रखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं टोटल मेकओवर हो जाए। It is easy for us to spot a sanskar that is more prominent as it is. We do not pay much attention to goodness. It is taken for granted. For example, if you face a situation calmly, I do not appreciate it because nothing much happened apparently. But when you are angry with me, it upsets me and leaves me wounded. So I will keep pointing out that you are short-tempered. Our role now should be to spot that in real time when someone crosses a situation calmly or when he attempts to change. इसमें बहुत ब्यूटीफुल बात समझाई गई है कि हमारे अंदर में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं और हम जब उन पॉजिटिव क्वालिटीज को डिस्प्ले करते हैं तो उस टाइम में अगर कोई और भी डिस्प्ले कर रहा है तो हमें उस टाइम पे ज्यादा ध्यान रखना है अपना।